Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Yasin, Edwards College, Peshawar, Pakistan. डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट है। स्टेटमेंट इज दैट ग्राफ फिजिबल रीजन एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट associated equation. Associated equations mean 2x plus y is equal to 6. Say this is equation number 1. Also 4x plus y is equal to 8. Say this is equation number 2. These are called associated equations. For y value put x is equal to 0, and for x value for y value put x equal to 0. We already have done in the previous lecture. So in this case, after simplification, p1 y assign 0, it's y assign 0, 2x is equal to 6. After simplification, 2x is equal to 6 divided by 2, and this is 3. p2 for y axis put x is equal to 0. So x is 0, 2x 0 0, y is equal to 6. Similarly, equation number 2 intercepts are following. Say p3 assign y is 0. After simplification, 4x is equal to 8 and x is equal to 2, and for y intercept p4 assign x is 0. So y in this case is equal to 8. These are 4 points, and we will draw these points. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स ड्रा करने के बाद, ठीक है, हमारे पास p1 और p2, इसको आप ज्वाइन कर लें। आपके पास एक लाइन आएगी p1 एंड p2। Say this is line L1. Similarly, p3 and p4. This is line number 2. अब आपके पास इसमें कौन सा रीजन शेड करना है, तो आपके पास टेस्ट पॉइंट चूज़ करते हैं। शेडेड रीजन के लिए ऑलवेज वी यूज़ टेस्ट पॉइंट। We choose origin, assign x0 y0, 0 plus 0 and 0 is less than 6 statement is true. It means that we shade the origin side area. It means that below L1, so L1 is there, so we shade this one area. Also, second put test point 0 0 0 is less than 8 statement is true. It means that we shade the below the region of the line L2. It means that this one is the region, but there is a condition: x must be greater or equal to 0, y must be greater. It means that first quadrant, shade the region in the first quadrant. It means that the region is feasible. Feasible region mean the region which is restricted to the first quadrant. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वो रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड किया जाए उसको फिजिबल रीजन कहते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी था। तो फिजिबल रीजन इस केस में हमारे पास ये वाला, हमारे पास जो रीजन आएगा, ये आपके पास कौन सा रीजन होगा? फिजिबल होगा। और रीजन हमारे पास इस केस में बॉन्डेड होगा, ठीक है। और ये रीजन हमारे पास कौन सा रीजन होगा? फिजिबल रीजन। अब इसमें बाउंड्री लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं तो कॉर्नर पॉइंट्स वो होती हैं। तो इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे हमारे पास, क्लियरली कॉर्नर पॉइंट्स और फॉलोइंग origin and p3 p2 p3 and also there is a point of intersection
say P5, which we have to find by the simplification of L2 L1. It means that we solve equation 1 and 2 to find the value of x. After simplification we have the following values of x and y. So after simplification we have x is 1 and y is 4. This is the point of intersection of L1 and 2 we have from equation 1 and 2 after simplification. So corner points are origin, P2, P3 and also P5. These are the corner points, and there is O, P2, P3 and P5s are corner point, and this polygon represent the feasible region. It is all about this question. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इस केस में बेसिकली देयर आर 3 इनइक्वालिटीज 1 2 3. सेम वही प्रोसेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एसोसिएटेड इक्वेशंस, replace inequalities by equality sign, then we have to find x and y intercept. It means that put x 0 and we get the value of y, put y 0 and we get the value. After simplification we have the following intercepts are there. तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमने आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, x 0 पोर्ट किया, y 0 पोर्ट किया, तो डेफिनेटली 0 जब आप असाइन करते हैं y की वैल्यू तो x आता है, x 0 पोर्ट करते हैं y, तो ये आपके पास इंटरसेप्ट्स आ गए हैं. अब आपके पास P1 P2 आ रहा है. इसको देखें, P1 पर अलॉन्ग x एक्सिस 3 यूनिट्स, अलॉन्ग y 0, बट P2 हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर 6. तो 1 2 3 4 5 6. अब जितने भी पॉइंट्स आते हैं इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ख्याल करें. आपके पास ये इसको अरेंज P1 को P2 से हम मिलाएंगे तो आपके पास एक लाइन आपके पास आएगी क्लियरली, P1 with P2 say this is line 1. फिर P3 और P4 say this is line 2, and P5 and P6 P5 and P6 say this is line number 3. ठीक है, आपने अपने लाइंस पॉइंट्स को जॉइंस कर दिया तो आपके पास लाइंस आ गई हैं. अब आपने रीजन्स को शेड करना है, तो हम मूव करेंगे टेस्ट पॉइंट्स की तरफ और चेक करते हैं. ठीक है, डायरेक्टली हम करते हैं कि टेस्ट पॉइंट्स आप ले लेते हैं. 0 + 0 0 इस लेस दैन 6 स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, फर्स्ट इनक्वालिटी से स्टेटमेंट आती है 6, जो कि आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है. इट मीन दैट कि L1 का बिलो हिस्सा आपने क्या करना होगा, शेड करना होगा. सिमिलरली 0 + 0 0 इज़ लेस दैन 12, ये स्टेटमेंट भी ट्रू. 0 + 0, आपके पास जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं इस केस में आप देख सकते हैं, ये तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स आती हैं आपके पास क्या हैं, ट्रू. इट मीन दैट कि जो ओरिजिन वाली साइड है वो आपने क्या करनी है, शेड करनी है. लेकिन फिजिबल रीजन है तो आप ख्याल करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आपने नहीं जाना, तो आपके पास L1 के बिलो तो ये हिस्सा शेड करेंगे. ठीक है, L2 के बिलो ये हिस्सा शेड करेंगे. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लेकिन इसके लिए फॉल्स होगा, तो इसलिए आपने इसको L3 के भी बिलो या अपनी ओरिजिन वाली साइड्स करनी है. ठीक है, तो आपके पास ये जो रीजन्स आएगा ये आपके पास कौन सा रीजन होगा, फिजिबल. और इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं ओरिजिन P1 P6 और ये कुछ पॉइंट्स आएंगे, एक ये पॉइंट्स आएगा P7, ये आप फाइंड करेंगे. किसकी मदद से फाइंड करेंगे, ये कौन सी लाइन है, L2. इट मीन दैट इक्वेशन 2, एंड दिस इज़ L3. इट मीन दैट इक्वेशन नंबर 3 को आप प्लस माइनस सॉल्व करके P7 फाइंड करेंगे. सिमिलरली ये पॉइंट्स भी आपके पास फिजिबल रीजन में बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करती हैं P8, ये भी आपके पास कॉर्नर. P8 कैसे आएगा, आपके पास कौन सी लाइन है, ये वाली L1, और कौन सी लाइन है, L2. तो इक्वेशन 1 और 2. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव P7 एंड P8 आर द फॉलोइंग्स. डियर स्टूडेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है, हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स मैंने कहा था कि
P7 P8 आपके पास आ रहे हैं। तो देखें P7 आपके पास बाई L2 एंड L3, इट मीन दैट इक्वेशन 2 और 3 को आप प्लस माइनस करके x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लें तो P7 ये कॉर्नर पॉइंट्स है आपके पास। सिमिलरली P8 सॉल्व कैसे होगा आपके पास, विद द हेल्प ऑफ L1 एंड आपके पास जो दूसरी इसके साथ इक्वेशंस आ रही है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आपके पास P8 है, देखें ये लाइन जा रही है L1, दूसरी ये लाइन आपके पास जा रही है L2, दैट मीन दैट इक्वेशन 1 2 को आप प्लस माइनस कर लें तो L3 और L2 को मैंने सॉल्व किया, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो P7 है ये, ठीक है, मैंने फाइंड किया। सिमिलरली P8 किस लाइन से आपके पास आ रहा था, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से आ रहा था। तो मैंने ये प्लस माइनस सॉल्व करके ये कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए। तो जो मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स देखें, ओरिजिन P आपके पास 6, P7 P8 एंड P1, ठीक है। इसको मैंने एक अलग से पॉलीगॉन की शक्ल में यहाँ पर डिज़ाइन कर लिया है। तो ये आपके पास फिजिबल रीजन भी होगा और ये इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। ये जो रीजन आएगा, ठीक है, ये बॉन्डेड रीजन, ठीक है, ये बॉन्डेड रीजन, और इसको आप कहते हैं फिजिबल रीजन भी, क्योंकि इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया किस क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट इज़ ऑल अबाउट द फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स इन केस ऑफ 3 इनक्वालिटीज़। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।